गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम टॉपिक करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इट इज़ अ चैप्टर नंबर 6 of class 12th biology. So we are discussing the exemplar problems over there. So the question number 1 is, in the DNA strand the nucleotides are linked together by. The options are number A, glycosidic bonds, number B, phosphodiester bonds, number C, peptide bonds, and number D, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो जैसे कि आपको पता ही है दैट the strands between them, the DNA strands of the nucleotides are linked together by. The right answer is phosphodiester bonds. The answer will be phosphodiester bond. The right option is B. Question number 2, a nucleoside differ from nucleotide it lack. देखिए न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड इट इज कंपोज्ड ऑफ बेस पेयर्स प्लस ribose sugar, and nucleotide is made up of base pairs plus sugar plus phosphate bonds. ठीक है, तो अब इसमें डिफरेंस कहाँ आएगा, देखिए बेस, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप. सो राइट आंसर इज फॉस्फेट ग्रुप. द राइट ऑप्शन इज सी. Question number next. Question number 3 is, both deoxyribose and ribose belongs to a class of sugar that is called triose, hexose, pentose and polysaccharides. So the right answer is pentose. Ribose sugar यानी कि it is pentagon, it is a pentose sugar. Question number 4 is, the fact that the purine base always pairs through hydrogen bond with the pyrimidine base in the double helix leads to number A, antiparallel nature, number B, semi-conservative nature, number C, uniform width throughout the DNA, number D, uniform length in all DNA. ठीक है, प्यूरिन ऑलवेज पेयर्स थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड. देखिए ए बाइंड विद टी. ठीक है, तो डीएनए स्ट्रैंड्स में क्या होगा, इक्वल क्या होगी, इनकी विड्थ होगी. ठीक है, कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम के करीब होती है. तो राइट आंसर इज सी, दैट इज यूनिफॉर्म विड्थ थ्रू आउट द डीएनए. Question number next, fifth question. The net electric charge on DNA and the histone is A, both positive, B, both negative, C, negative and positive respectively, and D, 0. So देखिए न्यूक्लियोसोम पढ़ा है जैसे हमने, न्यूक्लियोसोम पे चार्ज क्या होगा, 0 होता है. क्यों, न्यूट्रल चार्ज होता है. डीएनए कंसिस्ट ऑफ द नेगेटिव चार्ज एंड हिस्टोन इट इज कंसिस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज. हिस्टोन में कौन कौन से प्रोटीन होती है, लाइसिन एंड आर्जिनिन. ठीक है, लाइसिन एंड आर्जिनिन बोथ आर बेसिक इन नेचर. बेसिक है तो इट इज पॉजिटिव एंड डीएनए इज नेगेटिव. सो द राइट आंसर इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिस्पेक्टिवली. सी इज द राइट ऑप्शन. Question number next, sixth question is, the promoter site and the terminator site for transcription are located at. देखिए promoter site और terminator site ट्रांसक्रिप्शन में कहाँ पर लोकेटेड होती है. तो ऑप्शन ए 3' downstream end and the 5' upstream end respectively of the transcription unit. B 5' upstream and the 3' downstream and respectively of the transcription unit. C the 5' upstream end, number D 3' downstream end. देखिए प्रमोटर साइड ऑलवेज एट द 5' एंड. ठीक है, 5' एंड पे होती है हमेशा. प्रमोटर साइड जो होती है 5' पे होती है, और 5' और ये जैसे कि पता ही है कि प्रमोटर प्रमोट करने वाला यानी कि इट इज़ एट द अपस्ट्रीम होगा. टर्मिनेटर 3' पे होता है हमेशा और डाउनस्ट्रीम होगा. तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन. ठीक है. Question number 7. Which of the following statement is most appropriate for the sickle cell anemia? Number A, it cannot be treated with the iron supplements. Number B, it is a molecular disease. Number C, it confers resistance to acquiring malaria. And number D, all of above. देखिए it cannot be treated with the iron supplements. It is a right. ठीक है. It is molecular disease, ये भी ठीक है.
इट कन्फर्ट रेजिस्टेंट टू एक्वायरिंग मलेरिया, ये भी ठीक है. सो द राइट ऑप्शन इज डी. सी डी इज द राइट ऑप्शन. नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू AUG. देखिए, इट कोड्स फॉर मेथोनिन ओनली. B, it is an initiator codon. Number C, it codes for methionine in both prokaryotes and eukaryotes. And number D, all of above. So the right option is D, क्योंकि it codes for methionine. ठीक है, इनिशिएटर कोडोन भी होता है, कोड्स फॉर मेथोनिन इन बोथ प्रोकैरियोट यूकैरियोट भी होता है. नंबर डी, ऑल ऑफ अबव भी ठीक है. ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज डी. क्वेश्चन नंबर 9, द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कुड बी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, DNA एंड RNA. तो राइट ऑप्शन क्या हो गया? फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कौन सा है? RNA. सो द राइट ऑप्शन इज डी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिगार्ड टू मैच्योर mRNA in the eukaryotes. Number A, exon and intron do not appear in the mature RNA. ठीक है. Number B, exon appear but intron do not appear in the mature RNA. Number C, intron appear but exon do not appear in the mature RNA. Number D, both exon and intron appear in the mature RNA. So the right option is, देखिए जैसा कि पता है कि HNRNA होता है, हेट्रोन्यूक्लियर RNA. ठीक है, इसमें क्या होगा? एक्सोन भी होगा और इंट्रोन भी होगा. एक्सोन इंट्रोन इस तरह से होगा. अब जो इंट्रोन होता है वो क्या हो जाता है? स्प्लाइस आउट हो जाता है, बाहर आ जाता है. तो मैच्योर RNA के अंदर क्या होगा? एक्सोन तो अपीयर है बट इंट्रोन जो है डू नॉट अपीयर इन द मैच्योर RNA. सो द राइट ऑप्शन इज बी इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 11, human chromosome with the largest and least number of gene in them respectively. Chromosome 21 and Y, chromosome 1 and X, chromosome 1 and Y, chromosome X and Y. So the right option is chromosome number 1 and Y. ठीक है, chromosome 1 जो होता है हाईएस्ट होते हैं इसमें जो जीन नंबर है, और Y में सबसे क्या होते हैं? लीस्ट नंबर ऑफ जीन्स होते हैं. Question number next, 12th question is, who amongst the following scientists had no contribution in development of the double helix model for the structure of the DNA? Options are number A, Rosalind Franklin, number B, Maurice Wilkins, number C, Irwin Chargaff, and number D, Michelson and Stahl. देखिए, the option Rosalind Franklin भी ठीक है, म्यूरिस विल्किंस ने भी कहा था, चरगफ ने भी डबल हेलिकल मॉडल के अंदर कंट्रीब्यूशन दिया है. मेसेल्सन एंड स्टार्थ क्या था? सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ द DNA दिया है इसने. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो द ऑप्शन राइट ऑप्शन इज डी. क्वेश्चन नंबर 13, DNA is a polymer of nucleotide which are linked to each by 3-5- phosphodiester bonds. To prevent the polymerization of the nucleotides, which of the following modification would you choose? The options are A, replace the purine with a pyrimidine. Number B, remove and replace 3-OH group of the deoxyribose. Number C, remove and replace 2-OH group with some other group of the deoxyribose. Number D, both B and C. So देखिए, DNA polymer होता है न्यूक्लियोटाइड linked together by 3- and 5- phosphodiester bond obviously. To prevent the polymerization of the nucleotide, पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड को रोकने के लिए क्या मॉडिफिकेशन करेंगे? ऑब्वियसली रिमूव एंड रिप्लेस द 3-OH ग्रुप ऑफ द डीऑक्सीराइबोज. सो द राइट ऑप्शन इज बी इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 14, डिसकॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ DNA अकर्स इन वन स्ट्रैंड. ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूअस होती है रेप्लिकेशन में. एक कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड होता है, एक डिसकॉन्टिन्यूअस होता है. तो ए ऑप्शन, DNA molecule being synthesized is very long. Number B, DNA dependent DNA polymerase catalyzes polymerization only in one direction, that is a 5- and 3-. It is more efficient process. And number D, DNA ligase joins the short stretches of DNA. तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? DNA dependent DNA polymerase catalyze polymerization only in the single direction discontinuous strand के लिए. तो राइट ऑप्शन इज बी इज द राइट ऑप्शन. देखिए, डिसकॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ DNA अकर्स इन वन स्ट्रैंड. क्यों होता है डिसकॉन्टिन्यूअस? एक कॉन्टिन्यूअस है, एक डिसकॉन्टिन्यूअस है, ये कॉन्टिन्यूअस है, ये क्या है? डिसकॉन्टिन्यूअस है. क्यों? DNA डिपेंडेंट क्या पॉलीमराइजेशन करता है?
एक ही डायरेक्शन में करता है 5' एंड 3' में, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन ट्रांसक्रिप्शन इज कैटलाइज्ड बाय RNA polymerase? इनिशिएशन, elongation, टर्मिनेशन एंड ऑल ऑफ अबव। कौन कौन से स्टेप्स जो है RNA पॉलीमरेज के लिए आपने कैटलाइज किए हैं? देखिए, RNA पॉलीमरेज से इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, ऑल ऑफ अबव। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया इसका? कैटलाइज बाय RNA। देखिए, कैटलाइज तो सबके लिए ही है, ठीक है। तो परफेक्ट आंसर कौन सा हो गया? देखिए, इनिशिएशन में भी जो है RNA पॉलीमरेज, लेकिन सिग्मा यूनिट। टर्मिनेशन में रो यूनिट। इलोंगेशन में पूरा ही क्या होता है? कैटलाइज होता है, क्योंकि RNA की फॉर्मेशन होती है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया इसका? इलोंगेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, कंट्रोल ऑफ DNA एक्सप्रेशन बाय प्रोकैरियोट टेक्स प्लेस एट द लेवल ऑफ। जीन एक्सप्रेशन कौन से लेवल पे होते हैं? कंट्रोल जो होता है, DNA रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, नन ऑफ अबव। देखिए, कंट्रोल कौन से लेवल पे होगा? ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे क्या होगा? कंट्रोल होगा। तो राइट ऑप्शन इज ट्रांसक्रिप्शन लेवल, ठीक है। नंबर 17 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रोल ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन्स इन द ट्रांसक्रिप्शन इन द प्रोकैरियोट्स? रेगुलेटरी जो प्रोटीन यानी लैक कॉपीरन जो प्रोसेस है। नंबर ए, they only increase the expression, they only decrease the expression, they interact with the RNA polymerase but do not affect the expression, they can act both as activator as well as a repressor। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट रेगुलेटरी प्रोटीन के लिए तो यही ठीक है, इट बोथ एक्ट एज अ एक्टिवेटर एज वेल एज द एक्टिवेटर एंड द रिप्रेसर। तो राइट ऑप्शन इज डी इज द राइट ऑप्शन। Question number 18, which was the last human chromosome to be completely sequenced? Chromosome 1, chromosome 11, chromosome 21, chromosome X। तो लास्ट में कौन सा मतलब कि completely sequenced कब हुआ है? 2006 में हुआ है, क्रोमोसोम नंबर A, ठीक है, यानी कि क्रोमोसोम नंबर 1। तो राइट ऑप्शन इज A। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ RNA? RNA के कौन कौन से फंक्शन है? इट इज कैरियर ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम DNA टू राइबोसोम सिंथेसाइजिंग पॉलीपेप्टाइड्स। नंबर बी, इट कैरीज अमीनो एसिड टू द राइबोसोम, इट इज कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट ऑफ द राइबोसोम। नंबर डी, ऑल ऑफ अबव। तो सभी के सभी ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ अबव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाइल एनालाइजिंग DNA of the organism, a total number of 5386 nucleotides are found, out of which the proportion of different bases were adenine 29%, guanine 17%, cytosine 32%, thymine 17%. Consider the Chargaff rule. It can be concluded that it is a double strand circular DNA, it is a single strand DNA, it is a double strand linear DNA, no conclusion can be drawn। तो देखिए, एडेनिन 29% है, अगर डबल स्टैंडर्ड होता तो जितना एडेनिन है उतना ही थाइमिन होना चाहिए था, ठीक है, यानी कि ये भी कितना होना चाहिए था? अगर एडेनिन अगर 29% है, ऑब्वियसली थाइमिन भी 29% होगा, चरगफ रूल तो यही कहता है। ग्वाइनिन 17% है, तो साइटोसिन भी 17% होना चाहिए था, बट इसमें तो सब कुछ क्या है? बिल्कुल अलग है। तो इट इज़ अ सिंगल स्टैंडर्ड DNA। तो राइट ऑप्शन इज बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, इन सम वायरसेस DNA is synthesized by using RNA as a template, such a DNA is called, कौन सा DNA कहेंगे इसको? ADNA, BDNA, cDNA या rDNA? क्वेश्चन नंबर 21, तो इसे क्या कहेंगे हम? सर्कुलर DNA यानी कि cDNA। RNA एज ए टेम्पलेट जहाँ पर यूज होता है, इस DNA को क्या कहेंगे? cDNA, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इफ द Michelson and Stahl experiment is continued for the 4 generations in the bacteria, the ratio of 915 915 915 914 914 914 containing DNA in the 4th generation would be,
Options are A 1:1, B 1:4:0, 0:1:3 and number D 0:17. तो राइट ऑप्शन विल बी, अगर इसको कंटेन किया गया, ठीक है, तो राइट ऑप्शन विल बी 0:17. ठीक है, जब हम निकाल के देखते हैं इसको, आप निकाल के देख सकते हो, N15 वाला जो ऑप्शन है, इसको अगर हम 4 जनरेशन तक कंटिन्यू करें तो 017 ही आएगा. Next question is, if the sequence of nitrogen bases of coding strand of the DNA in the transcription unit is, देखिए 5-ATGAATG3, the sequence of the base in the RNA transcript would be 23 में. देखिए अब A जो है इट इज़ रिप्लेस्ड बाय, अगर कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें, देखिए कोडिंग स्ट्रैंड दिया हुआ है, इसमें टेम्पलेट स्ट्रैंड निकाल लेते हैं. ए से क्या आ जाएगा, इसका 3-5- क्या आएगा, देखिए ए का T, देन A, देन G, T T A एंड C, ये आ जाएगा. ठीक है, 5-. अब इसका RNA ट्रांसक्रिप्ट निकालना है तो T रिप्लेस बाय A रिप्लेस बाय U एंड हाँ जी G विद C एंड ए. RNA ट्रांसक्रिप्ट निकालना है तो यहाँ पर सिर्फ हमने क्या रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, T विद A, U, देन G, A, U, G. हाँ जी, तो RNA ट्रांसक्रिप्ट जो है इसका क्या आएगा, A. देखिए ये तो इसका कोडिंग स्टैंड हो गया. अब हमने तो क्या निकालना है, इसका 5- तो 3- निकालना है. तो A तो एज इट इज़ T रिप्लेस बाय U, देन G, A, यानी T की जगह हमने क्या करना पड़ेगा, U करना पड़ेगा, तब इसका RNA ट्रांसक्रिप्ट निकल जाएगा. देखिए ठीक है, तो राइट ऑप्शन विल बी AUG, AAUG3- यानी राइट ऑप्शन क्या आ गया इसका, A. ठीक है, इसका पहले कोडिंग स्टैंड निकाल लेते हैं, उसके बाद ये निकल ही जाएगा इजीली बिल्कुल, यानी कि A विद T, देन T विद A, देन G विद C, देन T A C. ठीक है, अब इसका ट्रांसक्रिप्ट निकालना है तो A रिप्लेस बाय T रिप्लेस बाय A, U, देन G, देन A U एंड G. ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो गया ये A इज द राइट ऑप्शन. Next question is 24th. The RNA polymerase holoenzyme transcribes number A, the promoter structural gene terminator region, B, promoter and the terminator region, C, the structural gene and the terminator region, number D, structural gene only. तो ऑप्शन राइट कौन सा होगा, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर रीजन. आरएनए पॉलीमरेज जो होलो एंजाइम ट्रांसक्रिप्ट करेगा वो स्ट्रक्चरल जीन को करेगा और किसको करेगा, टर्मिनेटर रीजन को करेगा. ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज सी इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द बेस सीक्वेंस ऑफ द कोडोन इन द mRNA इज 5-AUG3-, द सीक्वेंस ऑफ tRNA पेयरिंग विल बी. ठीक है, तो क्या होगी, AUG की क्या हो सकती है, इसमें tRNA पेयरिंग क्या होगी. tRNA पेयरिंग अगर हम निकालें mRNA की, देखिए 5-UAC, ठीक है, 5-CAU3-, 5-AUG5-, सॉरी 3-, 5-GUA3-. तो क्या हो सकता है इसका राइट ऑप्शन, ए को यू से देन जी, यू को किससे करेंगे हम, दैट इज ए एंड सी, UAC, यानी राइट ऑप्शन क्या आ गया इसका, ए इज द राइट ऑप्शन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 26 क्वेश्चन. द अमीनो एसिड अटैच टू tRNA एट इट्स 5- एंड 3- एंड एंटीकोडोन साइट या DH लूप. अमीनो एसिड किस पे अटैच होता है हमेशा,
थ्री डैश एंड पे होता है, जैसे कि अमीनो एसिड जो है, अगर हम बात करें टीआरएनए स्ट्रक्चर की, टीआरएनए कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, कुछ इस तरह का ये स्ट्रक्चर है, यानी कि यहाँ पर जो होगा वो एंटीकोडोन साइट होगी, यहाँ पे अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट होगी, तो यहाँ पे थ्री डैश एंड पे क्या होगा, ये अटैच होगा। 27th क्वेश्चन, to initiate translation the mRNA first bind to a the smaller ribosomal subunit, number b larger ribosomal subunit, the whole ribosome, no such specificity exists। तो टू इनिशिएट ट्रांसलेशन mRNA फर्स्ट बाइंड टू, mRNA किस पे बाइंड होता है, सबसे पहले स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट पे क्या होता है, बाइंड होता है। तो ऑप्शन राइट कौन सा हो गया इसका, ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, इन ई कोलाई लैकोपेरोन गेट स्विच ऑन व्हेन, लैकोपेरोन कब स्विच ऑन होगा, लैक्टोज प्रेजेंट एंड इट बाइंड टू रिप्रेसर, repressor bind to operator, RNA polymerase bind to operator, lactose is present and bind to RNA polymerase। तो राइट ऑप्शन इज lactose is present and it bind to repressor। तो राइट ऑप्शन विल बी ए। ठीक है, ए इज द राइट ऑप्शन। तो इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 6 को कंटिन्यू 28 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।